قومی اسمبلی میں اہم قانون سازی انصاف کی جلد فراہمی کے لیے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 34 اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 کی جائے گی۔ دونوں بل منظور۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی پاس۔ آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ میں ترامیم کے بل بھی ایوان نے منظور کر لیے۔ ججز کی تعداد بڑھانے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے بل سینٹ میں منظور۔ 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو۔ چیف جسٹس پاکستان کی صدارت میں اجلاس کل ہوگا۔ پارلیمنٹ کی پہلی بار جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی، 5 ارکان کمیشن کے رکن۔ آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے ایجنڈے پر۔ معاشی محاذ پر کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ پالیسی ریٹ میں 2.5% کی کمی 17.5 سے 15% کر دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پالیسی ریٹ میں کمی کا خیر مقدم۔ مشکل فیصلوں سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہو چکی۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروباری سرگرمیوں، برآمدات اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ مہنگائی کی شرح بھی 38% سے کم ہو کر 7% پر آ گئی۔ بین الاقوامی ادارے بھی معاشی اشاریوں میں بہتری کے معترف ہیں۔ ہر شعبے میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انتشار پھیلانے اور ملک کو دیوالیہ دیکھنے والوں کے منصوبے ناکام ہوئے۔ ہم نے ملک کی خاطر اپنی سیاست کی قربانی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب۔ تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کا اہم ایجنڈا۔ معاشی استحکام کے لیے اقدامات کے مثبت نتائج۔ کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل دوسرے ماہ سرپلس۔ تجارتی خسارے میں بھی کمی۔ سعودی عرب اور قطر کی قیادت سے ملاقاتیں نتیجہ خیز رہیں۔ دونوں ملکوں نے معدنیات، توانائی کے متبادل ذرائع اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ قطر کا اعلیٰ سطح تجارتی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ آذربائیجان بھی $2 ارب کی سرمایہ کاری کا خواہاں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب۔ حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ سٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ۔ دوران ٹریڈنگ 92,000 کی حد عبور۔ انڈیکس میں 1,078 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 91,938 پوائنٹس پر بند۔ 29 ارب روپے سے زائد کے شیئرز کا کاروبار۔ پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی دور میں کرپشن کے خلاف آواز بلند۔ پرجوش نعروں پر پی ٹی آئی ارکان پر سختہ طاری ہو گیا۔ اہم امور پر مشاورت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی 2 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستانی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت اہم علاقائی امور پر بھی گفتگو ہوگی۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی سالانہ کانفرنس کا پہلی بار پاکستان میں انعقاد۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی امن و استحکام مرکز کا افتتاح۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر نے نقاب کشائی کی۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن مشنز اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ عالمی امن کو بہت خطرات اور چیلنجز درپیش ہیں۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی حالت اظہار اقدامات کی متقاضی ہے۔ آرمی چیف کا خطاب۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور قدم۔ پاکستان کا مقامی طور پر تیار کیے گئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔
350 किलोमीटर रेंज मिसाइल जमीनी और समुद्री अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल जदीद नेविगेशन सिस्टम के साथ मिसाइल समत और रफ्तार तब्दील कर सकता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमारी और जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ, 6 खारजी दहशतगर्द हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके खबरंग में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फायरिंग के तबादले में 5 खारजी मारे गए, 3 जख्मी। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में भी खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई, 1 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए जिद्दत के साथ आगाही भी जरूरी। जामे तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत समेत टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना होगा। माहौलियाती तब्दीलियां किसी एक मुल्क का मसला नहीं, आलमी सतह पर इज्तमाई काविशों की जरूरत है। पायदार तरक्याती अहदाफ को कौमी तरक्की के एजेंडे में शामिल करने के लिए कानून साजी की गई। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। स्मॉग सियासी नहीं इंसानी मसला, पंजाब में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम। लाहौर में हॉटस्पॉट इलाकों से मुतल्लिक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। हुकूमत की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। खुसूसी अफराद की हौसला अफजाई, पंजाब हुकूमत की अहम पॉलिसी। हिम्मत कार्ड के इजरा समेत मुतादिद इक़दामात। वज़ीर आला मरियम नवाज से बसारत से महरूम व्लॉगर हाफिज मोहम्मद अली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने गाड़ी की चाबी हवाले की। खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद की हौसला अफजाई और उन्हें कौमी धारे में शामिल करना हुकूमती तरजीह है। वज़ीर आला मरियम नवाज। खैबर पख्तूनख्वा में हर शोबा जुबूं हाली का शिकार। सूबाई हुकूमत इंतशार और पुरतशद्दुद एहतजाज की सियासत में मसरूफ। तालीम का शोबा भी नाअहली की भेंट चढ़ गया। कौम के मामार रुल गए। प्राइमरी असातिज़ा का कल से खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान। मुतालबात की मंजूरी तक स्कूल्स की तालाबंदी जारी रहेगी। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सेहूनी फौज के हमलों में मजीद 33 अफराद शहीद, 156 जख्मी। काबिज फौज का इमदाद की बंदिश का बतौर हथियार इस्तेमाल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहत की वार्निंग जारी कर दी। इसराइली आबादकारों की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, फलस्तीनियों के इमलाक नजर आतिश। मशरक़ वस्ता में अमन ख्वाब बन गया। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका का हम फैसला, B-52 बमबार तैयारे खित्ते में भेज दिए। इसराइल के लबनान पर फिजाई हमले जारी। जनूबी लबनान से सेहूनी इलाकों पर रॉकेट हमले। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का भारतीय इक़दाम नामंजूर। मकबूजा असम्बली में करारदाद पेश। आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का मुतालबा। काबिज फौज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को अपने चचा की गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत से रोक दिया गया। पूरी दुनिया की निगाहें कल होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाब पर। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 16 करोड़ से ज्यादा। 50 रियासतों में 538 इलेक्टोरल वोट। कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सदर मुंतखब होने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत। Slides it through in spread field. He takes it on away over the leg side, gets underneath.
मेलबर्न में पहला वनडे, ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट से कामयाबी। पहले बैटिंग करते हुए कौमी टीम 47वें ओवर में 203 रन पर आउट। कैंगरूज ने हदफ 34वें ओवर में 8 विकेट्स पर हासिल कर लिया। दूसरा मैच जुमे को एडिलेड में होगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। पेरिस मास्टर्स टेनिस, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोवेरेव ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में 6-2 और 6-2 से कामयाबी। अलेक्जेंडर ज़ोवेरेव आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। खेल के मैदान में आपके ख्वाबों को ताबीर देने के लिए वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर खेलता पंजाब गेम्स 2024 यकम नवंबर से शानदार आगाज। 12 बैनुल अक़वामी खेलों से सजेंगे मैदान। तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर इंटर क्लब्स के मुकाबला जात। पंजाब भर से 1,20,000 खिलाड़ियों की शमूलियत। 10 करोड़ रुपए से जायद के कैश इनामात। अपने ख्वाबों को सच कर दिखाएं, जीत कर पंजाब की शान बढ़ाएं। महकमा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक अहम कानून साजी की है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 की जाएगी। ईवान ने दोनों बिल मंजूर कर लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी पास किया गया। ईवान ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम के बिल भी मंजूर किए। कौमी असम्बली इजलास की तफसील बताएंगे अरसलान असद। स्पीकर अयाज सादी की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वजीर कानून आजम नजीर तारण ने मामूल का एजेंडा मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश की, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। जिसके बाद वजीर कानून ने जिमनी एजेंडा के तहत सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस तरमीमी बिल 2024 पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल की शिकवार मंजूरी ली, जिसकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दी। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जाएगी। वज़ीर कानून आजम नजीर तारण ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम के बिल भी पेश किए, जिनकी कसरत राय से मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम के बिल का मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा आईनी मामलात, दरखास्तें, अपीलें और नजरसानी दरखास्त आईनी बेंच निपटाएंगे। बिल में मजीद कहा गया है कि चीफ जस्टिस और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद न हो तो कमेटी चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट
1953 में तरमीम के बिल भी पेश किए जिनकी ऐवान ने कसरत राय से मंजूरी दे दी। इन बिल्स में कहा गया कि मुद्दत मुलाजमत के दौरान तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में तीनों सर्विसेज चीफ्स अपनी अपनी फोर्स के सरबराह के तौर पर काम करते रहेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से शदीद हंगामा आराई और नारेबाजी की गई। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, बिल्स की कापियां फाड़ दी, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। अरसलान सदकर खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब और औरंगज़ेब खिची ने पार्लियामेंट हाउस में अलग अलग मुलाकातें की। दोनों अरकान ने हुकूमत की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए हुकूमत की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद खान चीमा और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के हुक्काम रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब में लाखों हुनरमंद अफराद की जरूरत है और सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी कुव्वत बुलाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने अपने सऊदी अरब और कतर के दौरों को इंतहाई मुफीद करार दिया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी वलीअहद से पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से मुफीद बातचीत हुई। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में सोलर, माइंस, मिनरल्स, ज़राअत और बाहमी शराकत दारी के दीगर शुबों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बुलाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिर एक मरतबा पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने बड़ी फ्रैंक डिस्कशन की। IT के हवाले से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि प्राइम मिनिस्टर IT में बहुत गुंजाइश है, आप स्किल्ड अपनी जो लेबर है वो हमें बचवाएं, लाखों लोगों की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कतर का दौरा भी सऊदी अरब की तरह निहायत मुफीद और तामीरी रहा। अमीर कतर ने माजी में $3 अरब की सरमायाकारी के हवाले से जो वादा किया था, इस पर तेजी से अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अपने वफ्द के हमरा जल्द पाकिस्तान आएंगे। माजी में जो $3 अरब की उन्होंने एक कमिटमेंट की थी, उस हवाले से पाकिस्तान और कतर तेजी से आगे बढ़ने का हमने फैसला किया और उसकी रोशनी में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के एक टीम पाकिस्तान जल्द आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि अज़रबैजान के सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसको अमली शक्ल देने के लिए जल्द इजलास बुलाऊंगा। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। महंगाई की शरह में कमी को देखते हुए स्टेट बैंक ने भी पॉलिसी रेट पे 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई है। कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालियापन के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया दौरा सऊदी अरब में पाकिस्तान सऊदिया शराकत दारी में नए बाब का इजाफा हुआ। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में सऊदी क़यादत बिलखुसूस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से तफसीली गुफ्तगू हुई। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर किस्म की मामनत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदिया की पाकिस्तान में हालिया सरमायाकारी का हजम $2.2 अरब से बढ़कर $2.8 अरब हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरा कतर के बारे में पार्लिमानी कमेटी को बताया कि कतरी क़यादत ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के इजाफे की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान में कतरी सरमायाकारी के $3 अरब को मंसूबों को हतमी शक्ल देने की बात हुई। कतर पाकिस्तान के हवाबाजी, होटलिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगा। शरका को आगाह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी की सहूलत और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। इजलास में पार्लिमानी पार्टी को कौमी असम्बली में मुजव्वज़ा कानून साजी के बिल के हवाले से भी एतमाद में लिया गया।
معاشی محاذ پر انتہائی اہم خبر، اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں 2.5% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ پالیسی ریٹ 17.5% سے کم ہو کر 15% پر آ گیا۔ فیصلے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ مرکزی بینک کی جانب سے مالیاتی کمیٹی کے اجلاس میں اراکین نے مشاہدہ کیا کہ مہنگائی کی شرح توقع سے زیادہ کم ہوئی، جبکہ ماہ اکتوبر میں اپنے وسط مدتی ہدف کے قریب پہنچ گئی، جبکہ سخت زرعی پالیسی نے مہنگائی میں کمی کے رجحان کو برقرار رکھنے میں بدستور کردار ادا کیا۔ زرعی پالیسی کمیٹی نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ غذائی مہنگائی میں تیزی سے کمی، تیل کی سازگار عالمی قیمتوں اور گیس ٹیرف اور او پی ڈی ایل ریٹس میں متوقع رد و بدل کی عدم موجودگی نے ارزانی کی رفتار بڑھا دی ہے۔ معاشی تجزیہ کار بھی موجودہ حکومت کی جانب سے معیشت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہتے ہیں، جس کے باعث معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ وہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 250 بیسس پوائنٹس کمی معاشی ترقی کی رفتار کو مزید رواں رکھنے میں اہم ثابت ہوگی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2.5% کی کمی کی اور وہ 15% پر آ چکا ہے۔ اس سے ملکی معیشت پہ بڑے پازیٹیو اثرات مرتب ہوں گے۔ ملکی قرضوں میں زبردست کمی واقع ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کو سہولت ہو جائے گی کہ وہ مختلف کمپنیوں کو اچھے سے اچھا لون دے سکتے ہیں، ان کی لیکویڈیٹی میں اضافہ ہو جائے گا، لون دینے کی کیپیسٹی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری کمپنیاں، بہت ساری انڈسٹریز جو کہ لیوریج پر ہیں، جو کہ جنہوں نے بورو کرے ہوئے ہیں فنڈس، ان کے فائنینشیل کاسٹ میں زبردست کمی واقع ہوگی اور وہ اس کمی کو یقیناً پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ کہ مہنگائی کو 40% سے سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آنا، اس کے علاوہ ڈالر کو سٹیبل رکھنا، تیسری اہم بات کہ پیٹرول کی قیمتوں کے اندر کمی مسلسل دیکھی گئی۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے جب جائزہ لیا تو پھر اس کے نتائج یہ آئے کہ آج پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹس کوئی 1% یا 50 بیسس پوائنٹ کم نہیں ہوئے، بلکہ یک مشت 2.5% نیچے آنا بہت ہی بہترین اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے اور اسٹیٹ بینک کی وجہ سے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک کے زرعی مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، IMF اور دوسرے مالیاتی اداروں کا ملکی معیشت پر اطمینان اور مختلف ممالک کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں بڑھتا ہوا رجحان، جبکہ پالیسی ریٹ کو کم کرنا معیشت کے لیے نہایت سود مند ثابت ہو رہے ہیں۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا ایک اور اہم سنگ میل، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس نے 92,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ کاروباری دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 1078 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 91,938 پر بند ہوا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے ضمیر عباس۔ حکومتی کاوشوں اور مؤثر اقتصادی پالیسیوں کی بدولت ملک کے معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں اور معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ ملکی سٹاک مارکیٹ بھی حکومت کی ان کاوشوں کے ثمرات کی بھرپور عکاسی کر رہی ہے۔ آج ٹریڈنگ کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1299 پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد مارکیٹ پہلی مرتبہ 92,000 کی حد عبور کرتے ہوئے تاریخ کی بلند ترین سطح 92,159 پر بھی پہنچی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی کے باعث اسٹیٹ بینک کی زرعی پالیسی میں کمی یقینی تھی، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ دیکھیں، مارکیٹ کافی زیادہ مثبت جو ہے وہ اس وقت پوزیشن دے رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پالیسی ریٹ کا اناؤنسمنٹ دیکھنا ہے۔ آج کے دن آخر کے اندر جو ہے کافی زیادہ جو ہے توقعات ہے کہ 200 بیسس پوائنٹ تک جو ہے مارکیٹ کے اندر کمی، جو پالیسی ریٹ ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اس ایکسپیکٹیشن پہ مارکیٹ کافی زیادہ مثبت پرفارمنس دے رہی ہے۔ آج بازار حصص میں مجموعی طور پر 444 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 258 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 139 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 47 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آج مارکیٹ میں 29 ارب 95 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت کے 2,96,000 سودے ہوئے، جن کا حجم 58 کروڑ سے زائد رہا۔ آج مارکیٹ میں آٹو موبائلز، الیکٹریکل گڈز، سیمنٹ، کیمیکلز، فرٹیلائزرز اور میوچل فنڈز کی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی رہی۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاحییٰ آفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچوں کے لیے ججز کی نامزدگی اور کمیشن کے سیکریٹریٹ کے قیام کے معاملات زیر بحث لائے جائیں گے۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک، نون لیگ کے شیخ آفتاب، PTI کے عمر ایوب اور شبلی فراز بھی شرکت کریں گے۔
خاتون رکن روشن خورشید اور نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ سوچ بچار کے بعد اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا مقصد عوام کو انصاف کی جلد فراہمی ہے۔ بڑی ڈیمانڈ جو تھی وہ ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اور ہائی کورٹ بارز کی تھی، جو چاروں رجسٹریز ہیں وہ سال ہر سال خالی رہتی ہیں۔ ماسوائے کبھی چھٹیوں میں جائیں یا کسی ایونٹ کے لیے جائے بینچ تو جاتا ہے، ورنہ بینچ نہیں جا پاتے، تو وہ بھی بہت ضرورت ہے۔ کوئی پنجگور سے اٹھتا ہے، کوئی خزدار سے آتا ہے، کوئی ساؤتھ پنجاب کے دور دراز ڈیرہ غازی خان سے اسلام آباد پہنچتا ہے، کوئی اپر کوستان سے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ نمبرز یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اپنی پینڈنسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسے کانسٹیٹیوشن بینچز پہ کتنے چاہیے، اسے رجسٹریز پہ کتنے چاہیے، تاکہ یہ جو 60-63 ہزار کا فگر ہے یہ نیچے آئے اور یہ سیلنگ چینج ہوتی رہے گی۔ وزیر قانون نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے مقدمات مقرر کرنے والی 3 رکنی کمیٹی میں آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی شامل کیا گیا۔ سکس امینڈمنٹ کے بعد ضروری تھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز جب بنیں گے تو ان بینچز کے جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ بھی کمیٹی میں ہوں، تاکہ 2 مختلف سٹریمز میں کام نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ انہیں روسٹر کا نہیں پتا آرڈنری روسٹر کیا چل رہا ہے اور کانسٹیٹیوشنل کیا چل رہا ہے، کیونکہ جو ججز کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ جائیں گے وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ سول فوجداری معاملات بھی۔ تو ان ساری چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ جو کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس، سینئر موسٹ جج اور ان کے ساتھ جو آئینی بینچز میں جو سینئر موسٹ ہوں گے وہ آئیں گے، اور اگر آلریڈی سینئر ججز پہ سے ہی آئینی بینچ والے بھی ہیں تو پھر وہ نیچے چلی جائے گی، یعنی کہ جو کمیٹی کی تشکیل ہے کوشش کی گئی ہے کہ اس میں جو آئینی بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوں گے، جو سینئر موسٹ جج ہوں گے، ان کی نمائندگی ہو تاکہ ایک ردم کے ساتھ کام ہو۔ پنکی گوگی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی دور میں کرپشن کے خلاف آواز بلند کر دی۔ پرجوش نعروں سے پی ٹی آئی ارکان پر سختہ طاری ہو گیا۔ سینٹ نے بھی متعدد اہم بل منظور کر لیے۔ پریزائڈنگ آفیسر عرفان صدیقی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل منظور ہو گیا، جن کے تحت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 34 اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 کی جائے گی۔ ایوان نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی پاس کر لیا۔ اس کے علاوہ آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ میں ترامیم کے بل بھی منظور کیے گئے۔ یہ بل قومی اسمبلی سے پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں۔ ایوان نے کارخانہ جات ترمیمی بل، گارڈینز اور وارڈز ترمیمی بل بھی منظور کر لیے۔ وابڈا یونیورسٹی اسلام آباد بل اور پاکستان اینیمل کاؤنسل بل کی بھی سینٹ نے منظوری دے دی۔ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ دورے میں ایرانی وزیر خارجہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان ایران 2 طرفہ تعلقات پر مشاورت کریں گے۔ یہ دورہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت، توانائی اور سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون اور بات چیت کو آگے بڑھانے کا اہم موقع فراہم کرے گا۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی 28ویں سالانہ کانفرنس کا پاکستان میں پہلی بار انعقاد ہوا۔ یہ کانفرنس عالمی امن و استحکام کے مرکز نسٹ اسلام آباد میں 4 سے 8 نومبر تک ہو رہی ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے عالمی امن و استحکام مرکز کی نئی عمارت کے افتتاح کے ساتھ کیا۔ ڈپارٹمنٹ آف پیس آپریشنز کے انڈر سیکریٹری جنرل جین پیر لاکر روکس، اقوام متحدہ کے پولیس مشیر
قائم مقام ڈپٹی ملٹری ایڈوائزر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ کلیدی خطاب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی امن کو ابھرتے ہوئے خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کی جانب سے امن قائم کرنے کی متعدد کوششوں کے باوجود بے گناہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حالت زار واضح یاد دہانی کراتی ہے کہ بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ مہمان خصوصی جین پیئر لاکراکس نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا اور کانفرنس کی میزبانی پر پاکستان کی تعریف کی۔ اس سے قبل نسٹ آمد پر آرمی چیف کا استقبال انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے کیا۔ پاک بحریہ نے بحری جنگی جہاز سے مقامی طور پر تیار کیے گئے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ 350 کلومیٹر رینج والا میزائل سسٹم زمینی اور سمندری اہداف کو انتہائی درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ نظام جدید ترین نیویگیشن سسٹم کے ساتھ اپنی سمت اور رفتار تبدیل کرنے کی خصوصیات سے لیس ہے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف، پاک بحریہ کے سینئر افسران اور سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے کامیاب میزائل تجربے میں حصہ لینے والے یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کیے گئے آپریشن میں 6 خارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے ضلع کھرمنگ میں پاک افغان سرحد کے ذریعے دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 5 خارج کو جہنم واصل کر دیا۔ آپریشن میں 3 خارج زخمی بھی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے افغان عبوری حکومت کو متعدد بار کہا گیا کہ وہ مؤثر سرحدی انتظام کو یقینی بنائے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے دوسالی میں بھی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں ایک خارجی احمد شاہ انتظار جہنم واصل ہوا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ ماحول دوست توانائی پر منتقل ہونے والی پہلی پارلیمنٹ ہے۔ یہ بات قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد میں پائیدار ترقی کی کانفرنس سے خطاب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ غذائی تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ اسلام آباد میں کمزور حالات سے قوت تک کے نام سے 27ویں پائیدار ترقی کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آج ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے سنگین چیلنجز درپیش ہیں جو پائیدار ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پائیدار ترقی کے عمل میں خواتین اہم شراکت دار ہیں۔ ہمیں چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرنا ہے۔ Parliament has the distinct honor of becoming the first parliaments to go green by converting its energy need to solar power. We have made commendable strides towards improving climate governance and sustainable development. وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے بہتر منصوبہ بندی ضروری ہے۔ پاکستان موسمیاتی تغیر سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہا ہے۔ Government efforts every facet of our national development in through partnerships. Public engagement and the commitment of organizations like SDPI that we can truly make strides towards a sustainable future. Together we can turn our vulnerabilities into our strengths. SDPI کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عابد قیوم سلیحری نے کہا مستقبل کا تعین مشکلات نہیں بلکہ چنے ہوئے راستے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا 2022 کے سیلاب میں پاکستانیوں نے بیرونی امداد کے بجائے خود پر انحصار کیا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ معاشی چیلنجز کے باوجود رواں مالی سال میں سرکاری ترقیاتی پروگرام کا 12.2% آبی وسائل کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ میں تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پانی کے ذخیرے کے لیے 2 بڑے ڈیموں کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں سمیع اللہ سے۔ کانفرنس میں خوراک کی فراہمی، انسانی صحت، توانائی کی ضروریات اور اقتصادی ترقی کے ساتھ پانی کے تحفظ کے باہمی تعلق کے حوالے سے مختلف سیشنز ہوئے۔ کانفرنس میں ماہرین، سرکاری حکام، NGOز، پالیسی ماہرین اور سٹیک ہولڈرز نے شرکت کی اور موجودہ درپیش چیلنجز پر غور و فکر کیا اور اس سے نمٹنے کے حوالے سے تجاویز دیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں پانی کی دستیابی خطرناک حد تک کم ہوئی ہے۔ پانی اور غذائی تحفظ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔
होगा। हुकूमत ने माशी चैलेंजेस के बावजूद रवां माली साल में PSDP का 12.2% आबी वसाइल के लिए मुख्तस किया है। Our national water policy launched in 2018 outlines strategic goals and targets with a focus on achieving sustainable water management by 2030. Today, we allocate 12.2% of the public sector development program to water resources, with rupees 98 billion dedicated to the critical sector in the current fiscal year, despite the fiscal challenges that we are currently facing. इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल मार्क स्मिथ, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की नायब सरबरा निकोल गिहॉट समेत दीगर शुरका ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर हैं और इससे निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए टैक्स नेट, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एशिया तरक्याती बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर इमा फैन से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हिमायत को सराहा और कहा कि पाकिस्तान और ADB के दरमियान शराकत दारी में इजाफा होगा। इमा फैन ने बताया कि ADB पाकिस्तान के लिए एक नए हिकमत अमली पर काम कर रहा है, जिसमें माहौलियाती तब्दीली, इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली जैसे अहम शोबों पर तवज्जो दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। मुख्तलिफ महकमों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी गई। कमेटी ने चीनी की बरामद के फैसले को बरकरार रखा। ECC ने पाकिस्तान स्टेट ऑयल और सोकार आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी के समझौते की मंजूरी दी। ECC ने मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। कमेटी ने मुसलसल अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायज़ा लेते रहने की हिदायत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल और तरक्याती मनसूबों के लिए वफाकी फंड्स की फराहमी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में मुतासरा इलाकों में अमन व अमान यकीनी बनाने और सूबे में कारोबार के लिए महफूज माहौल फराहम करने के लिए उठाए गए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तरजीही इक़दामात। इस साल पाकिस्तान ने 60 लाख टन से ज़्यादा चावल के मुख्तलिफ इक़साम बरामद करके $4 अरब आमदनी हासिल की। मौजूदा सूरत हाल में आइंदा माली साल में चावल की बरामदात का हदफ $5 अरब मुकर्रर किया गया है। अतालवी फूड ट्रेड कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी फातिमा यूनिकॉर्न राइस मिल्स में 50% शराकत दारी कायम की। इसके अलावा पाकिस्तान इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने वाफिर इजाफी स्टॉक की दस्तयाबी के पेश नज़र 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद की भी इजाज़त दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मारूफ नाबीना व्लॉगर और नात को हाफिज मोहम्मद अली को कार का तोहफा दिया है। हाफिज मोहम्मद अली ने चंद हफ्ते कबल वज़ीर आला से मुलाकात में गाड़ी की ख्वाहिश का इजहार किया था। मरियम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी और दरवाज़ा खोलकर उन्हें गाड़ी में बिठाया। हाफिज मोहम्मद अली ने वज़ीर आला के खुलूस और हमदर्दी को सराहा और कहा कि इन्हीं खुसूसियात की बिना पर वो और उनका ख़ानदान रोज़ अव्वल से मुस्लिम लीग नून के हामी हैं। हाफिज मोहम्मद अली अपने वीलॉग पे नात गोई के अलावा क्रिकेट पर भी तबसरे करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हर शोबा ज़ुबूहाली का शिकार है। सूबाई हुकूमत इंतशार और पुरतशद्दुद एहतजाज की सियासत में मसरूफ है। तालीम का शोबा भी नाअहली की भेंट चढ़ गया। सूबे में कौम के मेहमान रुल गए। प्राइमरी असातिज़ा ने कल से खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मुतालबात की मंजूरी तक स्कूलों की तालाबंदी जारी रहेगी। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे पेशावर से अदनान शाह। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा ने अपग्रेडेशन समेत दीगर मुतालिबात के लिए एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान किया है। असातिज़ा का कहना है कि 2023 में PTI की ही सूबाई हुकूमत ने प्राइमरी असातिज़ा समेत मुख्तलिफ कैडर की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी थी, ताहम अभी तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के सदर अजीजुल्लाह का कहना है कि सूबाई काबीना से मंजूरी के बावजूद अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा और मुतअद्दिद बार एहतजाज और मुज़ाकरात के बावजूद मामला हल नहीं किया गया। हमने 3 साल हुकूमत के साथ मुख्तलिफ सेमिनार्स किए, मीटिंग्स किए, उनको कायल किया, डिपार्टमेंट को कायल किया, फिर भी बात नहीं बनी। 17 जनवरी 2023 को प्राइमरी असातिज़ा की अपग्रेडेशन जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई, लेकिन बदकिस्मती है कि उसके बाद गवर्नमेंट ख़त्म हुई। साल गुजरने के बावजूद हमारे मुतालिबात पर कोई वो नहीं किया, गौर नहीं किया। तो कल इंशाअल्लाह पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 27,000 प्राइमरी स्कूल जो है वो बंद होंगे। 1 लाख के करीब प्राइमरी असातिज़ा मेल और फीमेल वो जनाब पार्क में इंशाल्लाह आएंगे, यहाँ पे डेरे डालेंगे, पड़ाव होगा, हड़ताल होगी और उस वक्त तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमारे इन मुतालिबात का नोटिफिकेशन रिटनली हमें
दिया नहीं जाता। असातिज़ा के एहतजाज के नतीजे में सूबे के 26,000 स्कूल बंद किए जाएंगे, जबकि 1 लाख से ज्यादा प्राइमरी असातिज़ा एहतजाजन सड़कों पर निकल आएंगे। असातिज़ा का कहना है कि अपग्रेडेशन के साथ साथ उनकी दीगर मुतालिबात भी पूरी किए जाएं ताकि वो मौसर तरीके से तदरीसी खिदमात अंजाम दे सकें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस मसले का संजीदगी से हल निकालना होगा। एहतजाज की सूरत में लाखों बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर होने का खदशा है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की क्वेटा में मुलाकात हुई। मुलाकात में बलूचिस्तान में जारी अवामी बहबूद के मनसूबों, बेहतर नज़्म व नस्क और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल हुआ। CM सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। अमरीका में सदारती इंतखाबात इस वक्त दुनिया भर की नज़रों का महवर हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने स्विंग रियासतों में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब किए हैं। सियासी पंडितों के मुताबिक 7 स्विंग स्टेट्स में से जो भी उम्मीदवार 4 या इससे ज्यादा रियासतों में कामयाबी हासिल कर लेगा वो मुल्क का अगला सदर होगा। अमरीकी इंतखाबात के तरीक़ाकार और इंतखाबी अहमियत के हवाले से देखते हैं नमरा की ये रिपोर्ट। अमरीकी इंतखाबात दुनिया भर में सबसे अहम और बड़ी खबर के तौर पर लिए जाते हैं। माहिरीन की राय में 2024 के अमरीकी इंतखाब के नताइज का असर दुनिया भर पर पड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से 2024 के सदारती इंतखाब में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मैदान में हैं और अपने बेबाक अंदाज में दोबारा मुंतखब होने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। रिवायती तौर पर अमरीका के दही इलाकों में रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा हिमायत हासिल होती है। लिबरल जमात की उम्मीदवार कमला हैरिस नायब सदर के अहम ओहदे पर फाइज रही हैं और सियासत के मैदान में वसी तजुर्बा रखती हैं। जून 1946 में पैदा होने वाले साबिक सदर ट्रंप अगर दूसरी मर्तबा मुंतखब हो गए तो अपने इख्तिदार की दूसरी मुद्दत वो 69 साल की उम्र में शुरू करेंगे, जबकि कमला हैरिस की उम्र इस वक्त 60 साल है। अमरीका में इंतखाबी अमल पर नजर डाली जाए तो हर रियासत के लिए इसकी आबादी के एतबार से इलेक्टोरल कॉलेज वोट की एक खास तादाद मुख्तस कर दी गई है। इस तरह इलेक्टोरल कॉलेज वोट की कुल तादाद 538 है, लिहाजा जो जमात निस्फ से ज्यादा यानी 270 वोट हासिल कर लेती है इसके सदारती उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाता है। इसी बिना पर सियासी जमातों के दरमियान रियासती सतह पर मुकाबला होता है और बाज़ औक़ात इसका नतीजा ये भी निकलता है कि मुल्की सतह पर मजमूई तौर पर ज्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार मतलूबा तादाद में इलेक्टोरल वोट हासिल न कर पाने की वजह से सदारती दौड़ में पीछे रह जाता है। अमरीकी सदारती इंतखाब के इस पेचीदा निजाम में सिर्फ 2 रियासतों के अलावा बाकी तमाम रियासतों में विनर टेक्स इट ऑल यानी अक्सरियत हासिल करने के खाते में इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम वोट डाल दिए जाते हैं। अक्सर रियासतें फैसला कुन तौर पर किसी एक जमात के पलड़े में अपना वजन डाल देती हैं। ऐसी रियासतें जिनके बारे में यकीनी तौर पर कुछ ना कहा जा सके उन्हें स्विंग स्टेट्स का नाम दिया जाता है। मारूफ अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पोल्स मुख्तलिफ रियासतों में कमला हैरिस की बरतरी जाहिर कर रहे हैं। CNN का कहना है कि कमला हैरिस अपने इंतखाबी कैंपेन का आखिरी दिन पेंसिल्वेनिया जबकि डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में गुजारेंगे। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीका में होने वाले सदारती इंतखाबात जिनमें बहुत ही कम वक्त रह गया है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी फ़ारूक शहबाज वराइज। फ़ारूक साहब, बहुत कम वक्त रह गया है सदारती इंतखाब में, क्या माहौल बन रहा है उस वक्त, और जो 7 स्विंग स्टेट्स के बारे में बार बार डिस्कशन होती है वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कौन लीड कर रहा है अभी तक? जी बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प मरला है कि इस वक्त जो ये 7 स्विंग स्टेट्स हैं इन्हीं में एक ही 2 वीक्स के अंदर हमने देखा है कि दर्जनों अपीयरेंस यहाँ पर दी हैं दोनों उम्मीदवारों ने, कमला हैरिस हों या डोनाल्ड ट्रंप हों, दोनों को बारहा यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर जब भी वो आते हैं दोनों मुतअद्दिद ऐलानात करते हैं इन स्टेट्स की जो हालात वाक़यात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। मिसाल के तौर पे जब आप सब ने देखा कि मिशिगन में जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, लाखों में है, अरब मुस्लिम वोटर्स वहाँ पर बड़ी हैसियत रखता है, अहमियत उनकी है, वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इंडोर्समेंट ली उनसे, वहाँ के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, वहाँ पे जो ग्रैंड मसाजिद के इमाम हैं उनसे उन्होंने इंडोर्समेंट ली है, और उनके जो एक दामाद हैं अरब नयाद वो भी वहाँ पर बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं। यही वजह है कि मिशिगन की हद तक अगर मैं देखूं
तो अभी लग रहा था कि कुछ दिन पहले तक कि डोनाल्ड ट्रंप जरा इस मामले को लेके लीड पर चले गए हैं, लेकिन अभी कल ही में अपनी तकरीर के जरिए कमाला हैरिस ने इस बात का ये दिया है कि जैसे ही वो सदर मुंतखब होंगी तो जो इसराइल फलस्तीन में जो कर रहा है, जो जंग हो रहा है, वो जंग रुकेगी, जंग बंदी की तरफ जाएगी। तो ये इस वक्त ना सिर्फ मुस्लिम वोटर्स बल्कि आम अमरीकी जो वोटर्स हैं उन वो हमेशा पहली बात ये कर रहे हैं कि कौन सा सदर आएगा, और उनका सदर जो ये जंगें रुकवाएगा, कौन सा सदर आएगा जो अमरीकी वसाइल को दूसरी जो मुल्कों में झोंके जा रहे हैं उनको रोकेगा। यहाँ पर आम अमरीकी की ये सोच है कि उनका पैसा, उनकी एनर्जी दूसरे ममालिक में वेस्ट की जा रही है। इसके साथ साथ इमिग्रेंट्स का मसला है बहुत बड़ा। यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको ट्रंप जो है वो वाज़ा उनको हदफ तनकीद बनाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही वो आएंगे वो बॉर्डर सिक्योर कर देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर, और आम अमरीकी ये भी समझ रहा है जब इनको यहाँ पर जॉब्स कम पड़ रही हैं, जब इनको यहाँ पर टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि रियासत के ऊपर बोझ है। वो इमिग्रेंट्स जिनको रियासत यहाँ पर लाती है उनको फिर फंड करती है, और ये सारे मामलात हैं। एक बड़ा अहम इशू है वो ये है कि ख़वातीन के अबॉर्शन के हवाले से यहाँ पर इस हवाले से बड़ी वाज़ह डिवाइड नज़र आती है। ट्रंप और उनके जो हामी हैं वो ये समझते हैं कि ये जो मामला है ये रियासत के हाथ में होना चाहिए, रियासत इसकी इजाज़त देगा या रियासत इस पर पाबंदी लगा सकती है। दूसरी तरफ जो कमाला हैरिस हैं या डेमोक्रेट्स हैं, उनकी ये सोच है कि ख़वातीन जो हैं वो आज़ाद हैं, ये उनका अपना इख्तियार है, चाहे वो उस पर अमल करें या ना हम देख करें। रहे हैं कि इस मरतबा अर्ली वोटिंग में भी 16 करोड़ वोटर्स में से बहुत सारे वोट कास्ट हो गए हैं। अब तज्जिया ये भी सामने आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो वोट कास्ट नहीं करेंगे, उनकी बड़ी तादाद है, वो भी असरअंदाज होगी नताइज के ऊपर। यही एक मामला है। मैं अगर आपको अर्ली वोटिंग का बताऊं तो यहाँ पर आपके यहाँ पर सुनने को और समझने में मिलता है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो अर्ली वोटिंग को जाते हैं, उनके वोटर जो यहाँ के सर्वे बताते हैं ज्यादा तादाद में, उसकी निस्बत रिपब्लिकन इसको पसंद नहीं करते। अलबत्ता इस मरतबा वो भी बड़ा मुतहरिक रहे, बार बार अर्ली वोटिंग का उन्होंने जिक्र किया, ऐलानात किए, टीवी पर इश्तहारात चले, कैंपेन्स चली। अलबत्ता ये जो आप बात कर रहे हैं ये फैक्टर बहुत अहम है। मुझे लगता है कि जब हम पाकिस्तान में लोगों से बात कर रहे होते थे तो एक बहुत बड़ा तबका इलेक्शन से इरेलीवेंट नजर आता था। तो यहाँ पर भी जो खास तौर पे मैंने यूथ है जब उनसे मैं बात करता हूँ, और आम जो अमेरिकी यूथ है और लोग हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो ये सोचते हैं कि फैसला चाहे बहुत पहले हो चुका होता है, शायद उनके वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या अगर ये दोनों में से कोई भी सदर बन जाए तो अमेरिका की पॉलिसियां वही रहेंगी जो होती आई हैं। तो ये चंद वो अवामिल है जिसकी वजह से ये भी एक कहा जा रहा है कि शायद इस तरह से लोग वोट, लेकिन अर्ली वोटिंग में ज्यादा यहाँ पर अभी तक की बड़ी तादाद जो है ये अभी तक जो देखने में आई है, चूंकि इससे पहले इन्होंने कोविड में जब था 2020 का इलेक्शन था उसमें इसका मुजाहरा हुआ था, लेकिन इस दफा भी जो नशियाती इदारे बता रहे हैं एक बड़ी तादाद वोटिंग के लिए बाहर निकली है। अलबत्ता ये फैक्टर अपनी जगह पर अहम है कि यहाँ पर बहुत से लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी तरफ से वो दोनों में से जो भी आए खैर है। लेकिन एक बड़ा तबका है जिसका बड़ा इंटरेस्ट है। लोग यहाँ पर घरों के बाहर नायब सदर के और अमरीकी सदर के यहाँ पर प्ले कार्ड्स लगाते हैं, खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं कि हम इसके सपोर्टर हैं। कई एक जगह पर मैंने ट्रंप की मुख्तलिफ घरों के बाहर तस्वीर देखी, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ किस्म के हैं, वो मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका नाम लिखते हैं, उनकी तस्वीर लगाती हैं। यहाँ का जो मीडिया है, यहाँ का जो सोशल मीडिया है, अभी ये दोनों सदारती उम्मीदवार जो हैं वो मुख्तलिफ पॉडकास्ट में भी गए, यानी यहाँ का सोशल मीडिया भी बहुत अहम है, अपना रोल प्ले कर रहा है। प्रोपेगेंडा भी यहाँ पर बहुत हो रहा है, चैनल्स हों या सोशल मीडिया हो। यहाँ पर जो कैंपेन्स हैं ख़ास तौर पे ट्रंप के साथ इस वक्त एक्स के मालिक और जो टेस्ला के मालिक है एलोन मस्क, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो अपने पैसों के जरिए और अपना जो सोशल मीडिया शहबाज बड़ाइच, आप मैं बात कर रहे थे हमसे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के हवाले से, कौन होगा व्हाइट हाउस का अगला मकीन, इस हवाले से कल फैसला होगा, कल वोटिंग होगी।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीर असेंबली के 5 रोज़ा इजलास के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। KMS के मुताबिक काबिज़ हुकाम ने इलाके में भारतीय फौज की भारी नफरी तैनात कर दी है। बड़े पैमाने पर चौकियां कायम की गई हैं और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। एक अहम पेशरफ्त में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन असेंबली वहीदा रहमान परा ने दफ़ा 370 की बहाली के लिए कश्मीर असेंबली के इजलास में एक करारदाद पेश की। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के मनसूखे के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का खैर मकदम किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नवंबर 1947 के जम्मू के कत्लेआम को इंसानी तारीख का बदतरीन सानहा करार दिया है। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि नवंबर 1947 में डोगरा महाराजा हरि सिंह की अफवाज, भारतीय फौज और हिंदुत्वा ग्रुपों ने पाकिस्तान हिजरत करने वाले मुसलमानों का कत्लेआम किया। उन्होंने कश्मीरियों से अपील की कि वो 6 नवंबर को यौम शोहदाए जम्मू इस तजदीद अहद के साथ मनाएं कि हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। मोदी हुकूमत ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को आज श्रीनगर में अपने मरहूम चचा मीरवाइज मोहम्मद अहमद शाह की गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख ने मीरवाइज उमर फारूक को घर में नज़रबंद करने के काबिज़ हुक्काम के मज़मूम इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। चेयरपर्सन अमन और सकाफत ऑर्गेनाइजेशन मशाल हुसैन मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। यासीन मलिक समेत कई हुर्रियत लीडर भारत के इंसानियत सोच मज़ालिम का निशाना हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को यासीन मलिक की सेहत के हवाले से खत लिखा है। मशाल मलिक ने अपील की है यासीन मलिक की ज़िंदगी बचाने के लिए इंसानी हकूक़ की तंजीमें फौरी रद्द-ए-अमल दें। हमने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को मैंने भी लेटर लिखा है और रज़िया सुल्ताना हमारी जो 12 ईयर ओल्ड बेटी हैं इन्होंने भी अपील की है। मैंने भी UN सेक्रेटरी जनरल को भी लेटर लिखा है जिसके अंदर ही क्लियरली जो राइट है टू बी ट्रीटेड टू मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ आवर ओन चॉइस, क्योंकि जो उनकी इतनी क्रॉनिक हालत है उसके लिए उनके अपने जो उनके डॉक्टर्स हैं ओवर द डेकेड्स उनको इजाज़त नहीं है, स्पेशली जो उनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब की ज़्यादातर इलाकों में स्मॉग और हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को है।